बाथरूम में बच्चे को दिखाओ यूँ करते हुए, ग्राफिटी करता हुआ बच्चा दिखाओ, और ये मतलब टेरेस पे एक पार्टी हो रही बारबेक्यू, कौन से हैं ये मैंने नहीं देखे, मैं घर में बैठी हूँ जेन ज़ी के। Hi and welcome to the Creative Chapter podcast. As we celebrate Women's Day this month, we are highlighting incredibly talented women creatives in their respective fields. Today we have with us Huma Mobeen, an award-winning digital creator, marketer, a co-founder of Contentry Inc. with over 300 international accolades, including recognition at Cannes Lions. She has redefined storytelling in advertising. Many know her for her viral solo honeymoon photos, but beyond that, she is a powerhouse in the creative industry, leading groundbreaking campaigns like Truck Our Child Finder. Let's dive into her journey, challenges, and the power of women in the creative world. Huma, welcome to the podcast. Thank you so much for having me. मैंने वैसे काफ़ी हद तक बताया about the whole journey as a creative woman. Yeah. But if you have to introduce yourself, apart from this, who is Huma? Oh, existential crisis में आखिर डाल दिया है. I would say कि I've seen, it may sound a bit कि भाई इतना philosophical, इसका बहुत philosophical, but I've seen a lot of people who try to be not who they are. Yeah. Right? And from very early on in my childhood, I was just true to myself. I realized that very early on. Yeah. बच्चे थे ना, हम लोग uncomfortable होते थे, थोड़े से anxious होते थे. It's because we were trying to be something our parents wanted us to be, right? बिल्कुल. But I think with the passage of time, I found some friends, and, people outside your family who made you feel comfortable in your skin. So from very early on, Huma is what Huma is. Like, there is no facade. मेरे लिए you are fearless. Thank you so much. Someone has to be. That I know, like a lot of my khalas ask me, Yeah. तो क्यों बोलती हो? क्या ज़रूरत है बोलने की? Because all the family follows you as well. And when you're in a family and you're a content creator, blogger, influencer, बातें लोग करते हैं. और अगर आप क्रिएटिव उसमें ना भी हो, even if you're not public, तो ये चीज़ कही जाती है कि why do you speak up for women? Exactly. है ना, मतलब इतना common होता है. But and as I was reading about you, doing some research, so in your previous interviews and podcasts, you beautifully explained how मतलब your journey has been like. तो जो fearless वाली चीज़ है, that has been there from the start. मतलब you always knew कि मुझे मेरे लिए क्या चाहिए. But कहीं से तो वो जागा होगा ना. यार, fearless जो end में आप करते हो, the decision you make, that is the point where you become fearless. उससे पहले तो your boss आपकी back हुई भी होती है, right? कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. So many moments in my life where like I was shit scared that my boss would probably kill me. Like I remember I called this girl up. He's like, he's going to kill me. She's like, are you mad? Like, you're just resigning. I was like, no, but you're just gonna kill me. Like, proper anxiety attacks or panic attacks आते थे before you reach to a conclusion. And for me, it's very black and white. ये सही है, ये गलत है. And somehow or the other, मैं ये नहीं कह रही मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी किया भी है, गुस्से में किया है. But you've accepted that. But I've accepted. मैं गलत कर रही हूँ और मुझे पता है. And that is one thing that makes you grow as a person as well. एक acceptance लाना. मतलब आप ग्रे एरिया में रह के क्या कर रहे हो? Who are you fooling? Yeah. You're not fooling just the other person, you're fooling yourself as well. कि नहीं, but मेरी तो intention, no, your intention was there to hurt someone, and you went ahead and did it. So when it comes to fearlessness, I think आपके हर किसी की जिंदगी में, it's not just girls. Girls get more opportunities to either choose to be not coward but be smart at that situation, or ruffle up some feathers, basically. बिल्कुल. So हर किसी की life पे वो points आते हैं. And what you choose at that time defines you. So recently, I was working with an international creative who was like, because everyone wants to get out of this country, right? So I was working with her, another fellow women creative. And we were working together, and, we were coming up with award-winning ideas and everything. And हुआ ये कि करते ना, she disappeared, and then I was on contractual basis, and then she came back and she's like, you know what? I'm not going to work with these people because XYZ reasons.
and they have made it difficult for me. So ये पाकिस्तान में लोग हैं. And these are okay, international, right? ठीक है. So patriarchy is not पाकिस्तान में it's a universal Yes. thing, right? And so she explained everything to me, and she was so anxious कि यार क्या बोलेगी वो ये है वो है. So she's like, but you know what? Since you worked on this, और वो award-winning idea है, मुझे पता है, I would get shit tons of money and recognition, and also probably a step into the door for them to probably hire me and bring me and my family abroad. And she was like, now it's up to you कि तुम्हें क्या करना है. And for me it was crystal clear कि मैंने कि मैं क्यों किसी के लिए campaign करूँ for women when they are not supportive of women. तो वो रोना शुरू हो गए. And she's like, I didn't even know she was following me on Instagram. So she's like, so what you are on Instagram, you're actually Indian. Like, I was like, you follow me on Instagram. So she's like, yeah, and I was in awe, but obviously, but I would, she was still like a girl's girl. She was like, I'm still insist कि आप कर लें. Because, you have good ideas and this will blow up for you and, you need the money and everything. And I was like, no, but, like, what's the point then? Like, मुझे भी hire करेंगे कल मेरे साथ काम होगा जो तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ हो जाएगा. And you've been very crystal clear from with everything. मतलब वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि whatever you're showing on your digital platform, आप उसी तरह से you're in your working environment as well. And what's the point? वो एक facade नहीं है. Exactly. Ask me who is what it is in the front. I'm not going to change myself क्योंकि मैं तुमसे अलग से बात कर रही हूँ, मैं उससे अलग से. You're so open about मतलब अपना mental health का, even your relationship with your husband, your past relationships, your kids. जिस तरह से you're bringing up everything और सारा जो भी काम चल रहा है, तो मतलब that is fearless for me because अपना एक true facade बाहर रखना for the people to see and then उस तरह से चीज़ों को लेके चलना is very difficult. मुझे बताओ क्या fear है? ये तो मुझे नहीं समझ आता. I feel how people, I remember judgment वाला I think. Who cares? हाँ. वैसे तुमने नहीं बताया बात. जज फिर भी कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. तो what's they're gonna judge you anyway. No matter वो वाली वो चीज़ ना कि आप अच्छे हैं फिर भी लोग आपको बुरा समझते, तो ठीक है बुरे बन जाओ ताकि वो एक satisfaction तो हो. Become a bitch from the get-go. they ठीक है फिर आपको leverage मिल गई, वो तो है ही bitch. हाँ कर लो जो करना है. बिल्कुल. I feel I don't want to say girls but also guys have vulnerabilities as well. They do. पर आप जितना अपनी vulnerabilities को expose करते हो ना, हमारे दिल में खौफ है, वो fear डाला हुआ है हमेशा से कि don't be an open book, सबको अपने बारे में नहीं बताओ, people take advantage of it. People will take advantage of it no matter what, right? But once you have said something and you've put yourself out there, I don't think anyone can take advantage of your vulnerability after that. वो confidence ही उस तरह से बोलेगा ना कि मतलब लोग उस तरह से नहीं आपको अप्रोच करते. like people say कि ये तो है ही ऐसी, इसको तो डिप्रेशन का होता रहता है. तो मैंने तो बोला है मुझे डिप्रेशन रहता है, मैंने बोला है मुझे I have been diagnosed with panic disorder. So like तो फिर क्या? And now they can't, when you tell, look, even with content creators we have so many coming up, right? And from the start, I remember there was a time where a couple of content creators approached me कि आप हमें manage कर रहे हैं. I was really excited about that because I was like, I'm going to not just कि भाई deals आए, negotiate करा और आप कर दें. Because I'm a creative myself, I will help you craft some real ideas that are going to be better. And I'm also going to, you're my products and I will be building your brand, basically. बिल्कुल. And I remember we had a discussion with them where we were like, hey, please don't do transition reels. And they're like, but it says, I'm like, it's going to, the way, how quickly it sells for you, someone younger, someone prettier, someone with better editing skills is going to come and take away your audience instantly. So that's quick content. You want to build a brand. आप देखें कोई product उठा लें, उसके सिर्फ beauty shots आ रहे होंगे, doesn't matter, आज Pepsi है, कल next cola है, फिर Khalifa cola, who cares, right? But if you build a brand with the proper story and brand values, so if a content creator, for example, मैं हो गई, I think Alina है, या माहम है देसी बगैर की, they have built their brand, right? Like माहम के अगर उसको sadness feel हुई घर में आके अपने माँ के बगैर, उसने लगाया. She's open about it, yes. And that vulnerability, you saw the numbers, right? Yeah. So even with content creators, I'm like, अपनी brand बनाओ. But लोग यही कहते हैं ना कि मतलब आप अपना true self लोगों को मत दिखाएं because
वही negative comments and all that. मतलब वैसे in general, if anyone talks about me, I was talking to Maham about it as well, and she's like, just अपने ideas throw करो. Don't think about what people think. Yeah, and never about numbers. I don't think Maham looks at numbers. No, or not Anita at all. looks at numbers. And, No. you know, even rebellious Neha does. I'm sure मतलब कहीं ना कहीं तो आता है. But I feel कि मेरी भी, I don't have a mass following. I'm a micro content creator, right? But the following that I've made is very organic and niche that understand what I'm saying. It's because आप हर किसी को नहीं प्लेस कर सकते, ये सब ये है important चीज़ है. You're in a workplace, you're at home, you're in a social set, anywhere you go. Yeah. I don't know why we're ingrained in our heads we have to please everyone. वो बचपन से चलता आ रहा है तो ना, भाई वो क्यों? जनरेशनल मतलब वाली वो दुनिया में चीज़ है. किस तरह के लोग हैं. मैंने कितनी लड़कियों को, दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को घिसते हुए देखा है कि एक दिन उनकी सास उनको एक अवार्ड पकड़ाएगी. वो कभी नहीं हुआ. मैंने अपनी माँ को हमने देखा है, राइट? अभी तक वो घिस रहे अपने आप को. एंड आई एम लाइक, अम्मी, आई एम सॉरी बट देयर इज नो अवार्ड फॉर दिस. But they're comfortable in that, no? They've been taught they have no other ways. And that's what they expect of you as well. उस तरह से. और फिर आपने different ना. हाँ, फिर when you go against all that, तो आप selfish, rebellious और ये सारे tags भी आप साथ लेके चलते हैं, ना? Like if you I have moved back with my parents, right, at the age of 36, 37, with my kids and my husband, you know. So आप सोचें कि they still treat you as a kid. ठीक है, आप माँ आपकी parenting में भी टांग अड़ रही है. बिल्कुल. Like with all the alhamdulillah, it's one of the, like, I'm so grateful that my kids are getting to spend time with their grandparents. My parents, my brother has left the country, so my parents now have, like, they have something exciting, like, you know, my little one is really in Sivim ke. And you also get a chance to spend time with them. Yeah. You know, मतलब उस तरह से भी it's a blessing as well. यार देखो, हमारा क्वालिटी टाइम फड्डे होते हैं देसी हाउसहोल्ड में यही मसला है. ठीक है कि तुमने Because वो mindset नहीं मैच करता. नहीं कर. देखो, आई फील कि हमारी जो एल्डर जनरेशन थी उनके साथ वाकई हुआ बुरा. घरों में रखा, नहीं जॉब करने दिया, ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया, सासों के साथ वो बेचारी फंसी रही, whatever the case scenario, right? They also enjoyed something that we're not enjoying, which was basically the financial provider was only the husband. बिल्कुल. So when my mom gets a bit about finances, I'm like, you've never earned, so you don't know what I have to, you know, when I'm talking about, अच्छा मैं अपने client को ये charge कर दूँगी, I'm discussing with my father and everything. I'm not trying to hush my mom away, but I'm saying कि, you know, I swear, mom, you didn't have to worry about money. It was only Abu's headache, right? But now you and I, we're joint on that as well, right? But Huma, talking about this financial wala aspect, अगर ऐसी situation हो कि everything is sorted, Yeah. would you still want to be the digital creator marketer? मतलब आप अपनी भी तो एक identity बनाना चाहेंगे ना, apart from being financially independent या supporting your family in any way or your husband anyway, आप फिर भी आजकल mindset तो वो भी है ना कि you have your dreams. Yeah. You've been brought up in that environment कि you were always taught कि अच्छा पढ़ो Yeah. and कुछ Make बनो. something of yourself, ठीक है, and once you are on that track तो you're told कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे. तो हर चीज़ उस हिसाब से तो नहीं चलती. पहले आप एक किताब खोल देते Yeah. कि आप सब कुछ अचीव करने की. स्कूल्स में यही होता था ना, पेरेंट्स यही कहते हैं कि भी ये भी करो, अचीव करने की कोशिश करो, 100% मार्क्स लेकर आओ, आपकी एक्टिविटीज़ में भी पूरा. Because वो क्योंकि वो आई थिंक वो कहीं लैक कर रहे थे जो कि वो चाह रहे थे कि आप वो फुलफिल कर सकें. But don't you think that's a lot of pressure On us. That's why It our is. generation is a bit fucked up. तो हम अगर इफ़ आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट इट, हमारे पे बहुत बोझ है इन द सेंस कि एक तो हमें अपनी हीलिंग करनी है, फिर हमने एक जनरेशनल ट्रॉमा तोड़ना है बिकॉज हमने आगे बच्चों को पास ऑन नहीं करना, एंड साथ साथ हमने अपनी ड्रीम्स को भी फोकस करना है. फिर वी ऑल्सो हैव टू सी किस कल्चर में हम रह रहे हैं, उसमें हमने किस तरह से दायरे में रह के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और जिस तरह से पहले हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप चलता आ रहा था उसको कुछ हद तक उसी तरह से भी मेंटेन करना है. हम बिल्कुल ही बाहर वालों की तरह नहीं हो सकते. मतलब हमारे अपने कल्चर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है. तो बोझ तो है. Yeah, my therapist was like, your generation, which is a millennial generation,
needs the therapy the most. Yeah. And I was like, because see, all you said was right? We are aware what happened in our childhood or with the way we were growing up. जो अम्मी ने एक decision या अबू ने decision लिया वो सही नहीं था. Be it shifting cities or going out of country, whatever. Like they didn't think about the implications on children, right? बिल्कुल. And they never catered to it as बट वो हमेशा यही सोच रहे थे ना कि हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं. ठीक है, वो हम भी करते हैं. बिल्कुल. See, so whatever happened, now we're getting aware कि यार उसका implication था. That's why I am right now like this, right? बिल्कुल. Maybe तुम जो fearless कहती हो मुझे, it could be because I was like, ये ऐसा क्यों चलता है? You always I'm question. not comfortable in this position of being a typical girl wearing shalwar kameez and so maybe my rebellious nature, which I came across with therapy and everything, कि मैं jeans इसलिए नहीं पहनती क्योंकि I'm comfortable में jeans कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को बताना चाह रहे हो, right? जो the inner child that I have, I want to heal that. So not only do we have to realize कि क्या हुआ था and understand the implications is happening on your life, but we can't get closure from our parents as well. So we can't even turn to our parents and be like, आपने वो जो किया था सही. Because they've never apologized. They've always, एक तो बड़े हैं तो कभी गलत नहीं हो सकते और इस एज में आके they're like really later stages, right? So we can't even get closure from our parents. Now what do we have to do? We have to heal on our own. And we have to also make sure जो हमारे partners हैं वो भी heal कर रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि कहीं आपने पलट के उनको बोल दिया कि यार मेरी अम्मी के साथ नहीं, मेरी अम्मी ने तो ये किया था. अरे यार competition trauma का नहीं चल रहा. नहीं, बिल्कुल. You have to sit and talk about it. जो कि हम I think हमने पेरेंट्स को करते हुए नहीं उतना देखा. हमारे पेरेंट्स से बच्चों की एजुकेशन, शादी, बच्चे आगे से बस यही बात होती थी. मतलब I think इससे ज़्यादा और कोई बात होती नहीं थी हाउस होल्ड पे, है ना? There was not there were अपनी फीलिंग्स की बात नहीं इतनी होती थी. नहीं, वो फिर एक जग जब भरता था तो वो फटता था बस. थे ना वो लोग कि ये तो है ही नहीं. अब so coming back to the point, हमें क्लोजर भी नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स से. हमें पार्टनर्स thankfully ऐसे मिले जो mature हों, who are going through healing, who are going through their own therapy and everything. And they're understanding कि आप भी कहाँ stand करते हो और generational trauma और ये औरतों वाली चीज़ क्या है चलती आ रही है. Exactly. And then from that, if you have kids, you have to stop yourself from passing it on. बिल्कुल. But not too much कि वो आगे mess भी बन रहा हो. बिल्कुल. So like एक balance create करना बहुत मुश्किल है. कितना करें यार. एंड देन उसके बाद बच्चों के साथ ये भी कि आप ज़्यादा जेंटल पेरेंटिंग भी नहीं कर सकते. थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट हो. बिल्कुल. तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस ने हमें थोड़ा मोल्ड तो किया ना. रिबेलियस हो गए कि हम तो नहीं करेंगे अपने बच्चे के साथ. अब यार बच्चा बिगड़ा जा रहा है तो कहीं तो करो. सो we in Islam we would talk about this कि यार कुछ ज़्यादा तो नहीं, like I live vicariously through my daughter. So when she has to buy a bag, I take her to entertain her. I let her get spoiled because उसकी स्टेशनरी में मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना. प्रॉपर हमारे तो टेम्पो के मार्कर्स आते थे जैसे तू लगा के फिर हम चला होते थे, right? But उसको मैं प्रॉपर and even I see my brother. Is it because you're like healing your inner child through her now? And it's not just me. Everyone. My brother yeah sends stuff. ठीक है. तो he recently sent stuff from UK and वो था इतना बड़ा ना markers का case, like glitter markers and everything. I was like wow. फिर उसके बाद उसने वो वाला pencil box भेजा. इसके एक बटन दबाओ तो 4 drawers नहीं खुल जाते थे. मैंने कहा ये तुमने मेरे लिए भेजा क्या? नहीं, मैंने उसको भेजा. But I was like, see, but I knew what he was also. And then he sent that very हाई क्वालिटी स्लिंग की. ठीक है, वो जो वो वाला नहीं था ना प्रॉपर मोटा वाला. तो मैंने कहा ये भी तुमने मेरे लिए बेटा कहते नहीं. मैंने उससे बात की. मैंने कहा बेस्बा आई थिंक यू आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड. क्यों ये वाली चीजें नहीं होती थी ना एक्सेसिबल. याद हम लोग देखते थे उस बच्चे को जो 4 ड्रॉर क्लास में 1 या 2 ही होते थे भी होता था. फिर घर जाके लड़ना कि मुझे भी लेके दे. तो नहीं एक्सेसिबल था. I do live vicariously through my daughter, but to pull myself back, so Arslan was like हुमा हम क्या हम सही कर रहे हैं? Like we question ourselves because कहीं ना कहीं ये वाली वो चीज़ आ रही है ना. So our parents wanted us to achieve a lot of things जो कि वो नहीं कर पाए. But here you're in the same way you're trying to because you want to heal your inner child and also give her that space. But तो बैलेंस कैसे फिर लाना चाहिए? यार बैलेंस नहीं आता. नहीं, I'll tell you, as parents
all of us are winging it. ठीक है कि मतलब हम लोगों को दिन में नहीं पता होता आज मेरा चैलेंज क्या आ रहा होगा, बिल्कुल। बट जब वो आते हैं हम उसको डील उसी तरीके से अपनी विजडम से डील करते हैं, राइट? एंड आई एम श्योर लाइक आवर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. बिल्कुल. The only Because difference, you're doing for the first time as well, na? yeah, but the only difference in our generation of parents is we will accept our mistakes and apologize to our kids. बिल्कुल. That's where I turned to Arslan. I was like, I will accept my mistake. I will apologize to my daughter because I want the target or the purpose objective of raising a child is कि ये एक अच्छी इंसान बन के निकले. For me, it is personally. I don't care about the grades. मेरी बच्ची है अरसलान की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेगी, राइट? और नहीं भी करे, जो भी करे खुश रहे. जो कि आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू दैट पार्ट यू मेंशन कि इनसे कभी आपने नहीं सोचा था, डिजिटल मार्केटिंग का कभी आपने नहीं सोचा था, यू जस्ट वेंट विद द फ्लो. सो आई थिंक द फ्लो में ना है. मुझे अब हंसी आती है. मेरे साथ ए लेवल्स में मेरी एक दोस्त थी एंड शी सेड कि मैं तो सईद साहब के पास जा रही हूँ ड्राइंग के लिए. आई वाज लाइक क्यों? कहती है मैं एनसीए का अप्लाई कर रही हूँ. क्या अप्लाई करी? VCD. And so I had no idea what VCD was, right? So I was just following her. I had absolutely no idea. Architecture का पता था, तो I was like अच्छा चलो VCD अप्लाई करूँगी और 2 डिपार्टमेंट्स के आप ऑप्शन देते हैं तो दूसरा आर्किटेक्चर होगा. And the thing is that she never got into that field. She never went into it. उसने सोचा हुआ था फिर भी. सोचती है कि मेरा ख्वाब था तो ये लेके जाएगी, बट पाथ था ना. हाँ, पाथ था. मुझे क्या पता था कि ये होना था. वो लिखा हुआ था. You had to be at this position. Yeah. So अब वो तो था ना कि you went with somewhat flow ही था ना, मतलब जो चीज़ सामने आई you accepted it. अच्छा चलो मैं try करके देखती हूँ. तो I think you're doing the same thing with the kids as well. ना मतलब उनको you're allowing them कि वो who they are. Who they are. Yeah. क्योंकि you've experienced it. Yeah. But and is it because you were the middle child so you had that chance? है ना, मिडिल चाइल्ड. आई वॉज द डार्क शीप ऑफ द फैमिली, लिटरल. ठीक है, मैं और मेरा एक सिर्फ कजन था, बाकी सारे वो रहे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर ओनली 2 गर्ल्स फ्रॉम आवर ननियाल साइड. सो वो हाउस होल्ड चोर्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही फॉल करते थे कि रात के 2 बजे अगर चाय बन रही है तो निदा और हुमाई बना रही है, या गद्दे लग रहे हैं तो निदा और हुमाई लगा रही है. until you know like there were very few people who took a stand. I have mad respect for my khala because हम लोग समर्स में जाते थे अपनी नानी के घर कराची में, एंड माई मॉम वुड बी लाइक आ रही होती थी देर से, तो माई खाला एंड माई मामूज वुड स्टार्ट कमिंग. एंड आई रिमेंबर कि एक टाइम पे यू नो नानी वाज लाइक उमा जाओ गद्दे लगाओ, एंड देन माई खाला टर्न टू माई नानी, शी इज लाइक वो क्यों लगाए, तुम लोग भी उठो, लड़के भी हैं और हेल्प करो क्योंकि गद्दा है उठाना. सी छोटी सी बच्ची हो, आप बोल रहे हैं कि भारी गद्दे, which wasn't an issue. ठीक है यार, मतलब कर सकते हैं. But she sort of did protect me in some way or the other, where she was like तुम लोग भी जाओ लगा. अच्छा. she showed the others as well ना कि मतलब सिर्फ लड़की नहीं काम करे, आप भी कर सकते हैं. and it's में कोई ingrained thing. You cannot change. Like remember I was telling you about my खाला was like कि तुम क्यों ऐसी बातें करती हो. And I was like किसी ने तो करनी है, बट तुम क्यों करोगी? क्योंकि कोई और नहीं कर रहा. Someone has to bring this forward. कहीं ना कहीं वो बॉदर करती है ना चीज, करती तो है. इस वजह से उस मुझे शायद उसको नहीं, काफी दफा जहाँ पे you know I've done certain acts of fearlessness has not benefited me at all, but it has hit that man or whoever somewhere or the other to think twice before you come into his office. कि यार मेरे साथ हुआ था. किसी ना किसी को तो कोई ना कोई बात करनी ही पड़ेगी ना, तो हिलाना पड़ेगा. मैंने थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा डरा हुआ होगा या नहीं डरा होगा, दूसरी कोई आके हिलाएगी तो फिर वो सोचेगा कि यार ये पैड. और मुझे आज तक नहीं समझ चल रहा, मैं मेरी जेंजी से बहुत हटती है. आई एम नॉट किडिंग. दे एंड आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर देम एंड आई हैव, बट मुझे आज अभी तक नहीं पता चल रहा कि किधर जा रहे हैं. नहीं, फिर जो हमारी ओल्डर जनरेशन उसके अंदर हिम्मत कैसे है कि अभी तक जेंजी के साथ पंगे दिए जाए. मुझे नहीं समझ आ रहा. तो मुझे फियरलेस कह रही हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है. मुझे अच्छे भी लगते हैं जेंजी. आई एम टीचिंग जेंजी राइट नाउ, एंड यू नो आई हैव हैड लाइक सीनियर्स कॉल मी एंड दे लाइक हमें तो जेंजी समझ ही नहीं आती, तो काम भी नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं और वो वीकेंड्स ऑफ मिले और ये मिले. एंड आई एम लाइक इसमें बुरा क्या है? हाँ, दे नो दे थिंक, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है आपको अपनी चीज़ मालूम होनी चाहिए, बट
जैसे हमने डिस्कस किया कि हम एक सोसाइटी में भी रह रहे हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग भी चलना है, जैसे एक वर्क इन्वायरमेंट होती है। Yeah. सो जेन ज़ी में कुछ चीज़ें आती है जी, हमने इतनी सैलरी लेनी है और हमने इतने घंटे काम करना है और हमने इससे एक्स्ट्रा नहीं करना और ज़्यादा इनपुट देना भी नहीं है, यू नो। बट हमने हमेशा ज़्यादा इनपुट दिया और हमने उसमें से कुछ अचीव तो किया, कुछ तो अचीव किया इन द सेंस कि हाँ, यू राइट कि मतलब I will question you. I will try to justify why Gen Z is the way they are. Okay. I've had Gen Z. I've hired them as well, and I've fired them 2 weeks, 2 months or 2 weeks later as well. कुछ ऐसे हैं that do exploit you, but don't generalize them. मैंने जो Gen Z से discussions किए, and I've had one-on-ones with both NCA and BNU students as well, and I've hired them and I've given them projects as well, and they've made me very proud. यार अगर एक बंदा अभी भी मुझे कोई हायर करे, मैंने Gen Z से सीखा है, ये मेरी सैलरी है exclusive of taxes, within first 3 days of the month मुझे ये चाहिए है, मेरे टाइमिंग्स ये हैं, इसके बाद कोई मीटिंग होगी मैं घर से करूँगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आई एम मदर, मेरे एक्यूलेट्स हैं, ठीक है, टू प्रूव व्हाटएवर आई एम चार्जिंग यू, यू विल गेट योर मनी फॉर। एंड उसके अलावा वीकेंड्स पे यू हैव टू प्रायर टू दिस टेल मी एंड दैट, एंड आई डोंट लाइक माइक्रो मैनेजिंग। अगर आप ये चीज़ें कर लें तो मैं 12 बजे तक आपके ऑफिस में बैठने के लिए तैयार हूँ। सी इवन विद जेन ज़ी दे आर लाइक कि हमें ये टाइम, दे ले डाउन द बाउंड्रीज ना। अब हमारे यू ऑल्सो नो दैट कि हमारा ऑफिस कल्चर बहुत टॉक्सिक हो चुका है पाकिस्तान में। वाई? कंपनीज आर नॉट मेकिंग मनी एंड दे आर टेकिंग इट डाउन ऑन देयर एम्प्लॉइज। आपकी जो सैलरी है वो और कम किए जाते हैं। प्रमोशंस किसके हो रहे हैं यार? लोग जॉब पोजीशंस और कंपनीज चेंज करके ही अपना सैलरी बम्प ला रहे हैं, वरना विद इन कंपनीज आई हैव हार्डली हर्ड कि हाँ मेरा प्रमोशन हो गया या कुछ हो गया। आई हैव हार्डली सीन दैट हैपन बिकॉज द इकोनॉमी इज क्रम्बलिंग, द कंपनीज आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर overworking their employees. बिल्कुल। And जब आप एक environment में हो ना जहाँ पे पैसा की बहुत ज़्यादा हो, which is the case with every company, any business, right? तो वो trickle down होकर आपका work culture toxic हो जाता है। ऐसे कि हर किसी की फटी होती है कि आज मेरी जॉब गई, मैंने काम नहीं किया, वो कोई काम, आपने कोई काम किया होगा तो आपका काम लेके क्रेडिट लेने चला जाएगा। तो द वर्क कल्चर इज टॉक्सिक। सो इफ जेन ज़ी को थोड़ा सा आप अच्छा कल्चर दो, वो रहेंगे। वो होता है ऐसे, वो लेट नाइट भी रुकेंगे, वो वीकेंड्स भी लगेंगे। आई हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई वाज इन BBDO। आई हैव एक्सपीरियंस द अदर वे अराउंड अ लिटिल बिट, दैट्स व्हाई माय पर्सपेक्टिव वाज कि मतलब दे डोंट, मतलब सैलरी जो कहा, टाइमिंग जो कहा, सब वो हो रहा है, बट उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा। इन द सेंस कि जो चीज़ प्रॉमिस की गई है वो उस टाइम पे आ ही नहीं रही है। सो वो एक टाइम का प्रॉब्लम कि जी सैलरी जो आप बोल रहे हैं, हालांकि अभी आपका वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट हम फिर भी उससे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, बिकॉज मी एंड हसन हैज़ ऑलवेज हैड इन माइंड के एक ना खुला, हाँ, और एक खुला ग्राउंड दो फॉर देम टू एक्सप्लोर, ठीक है। बट वो उस चीज़ को ना कभी कभार एक्सप्लॉइट किया गया है। मतलब इस वजह से ना वी ऑलवेज बीन लाइक के हम तो ज़्यादा एफर्ट दे देते थे चाहे हमारी कम सैलरी होती थी, बिकॉज वी वर सो ड्रिवन कि भाई कुछ तो करना है जिंदगी में, यू नो। बट मुझे वो ड्राइव अभी आई पर्सनली फील कि वो जेन ज़ी में वो ड्राइव उतनी ज़्यादा नहीं है। यार मैंने खुद फायर किया जेन ज़ीज़ को, क्योंकि but you can't generalize all of that. No, right? you're right. I have seen like मैंने प्रोजेक्ट्स दिए फ्रीलांस के, मैंने आउटसोर्स कर दिए। उनके मेरे पास क्लाइंट्स हैं, उनके पास ज़्यादा बजट्स नहीं थे, देखो ना अफोर्ड मी, तुम ले लो, तुम ले लो। और मैं मेरा अपना तरीका होता है जैसे कि मुंह ना काला कराना मेरा, एंड दे बी लाइक नहीं मैम आप फिक्र नहीं करो। और अगर कोई मसला होता था तो मुझे क्लाइंट को रीच आउट कर लेता था, ये क्या होता था, देन आई कॉल देम, दिस इज नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट। सो नॉट जस्ट गिविंग देम प्रोजेक्ट्स, आई वुड आल्सो मेंटर देम हाउ टू manage, deal with clients as well. Exactly. So having a bad experience with a couple of Gen Zs who उससे आप नहीं कर सकते, you can't judge them because they are talented. They know. मैं इसलिए अपना बताती हूँ मेरा है, because despite my 15 years of experience, despite that you look me up and all the articles and everything are there, I was still getting taken advantage of. So I can only imagine एक जो नया बच्चा है जो कर रहे हैं कितना रोन देंगे। Because this is what my husband taught me. So over the years he's taught me कि मतलब अपनी वर्थ बनाओ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कहे तो बस वहाँ फ़ौरन खड़ी रहो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाइंट अगर कह रहे कि इतने पैसों में कर दो तो बस फ़ौरन उतने पैसों में कर दो। अब चाहे 4 प्रोजेक्ट्स जाने दो, एक अपनी वर्थ बनाओ। तो इट टुक मी सो मच टाइम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो वाली थिंकिंग मेरे शायद फादर की नहीं रही। उन्होंने कहा कि
कुछ शुरू के प्रोजेक्ट्स मुफ्त में भी करने पड़ते, कर दो। एंड आई डिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने मुफ्त के प्रोजेक्ट्स भी किए, बट आई सफर्ड ना। ये हमारी चाइल्डहुड पे बात आती है ना बेटा, फिर के हमारे माँ बाप ने बोला जिंदगी तो यूं ही जाएगी यार, हमारी भी ऐसी गई है, आपके आप पेरेंट्स। और वहीं तो आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप को ना, मैं फेल हो गई। हाँ, हम फेलियर से क्यों डरते हैं? नॉट बिकॉज हमारा एफ आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बट हमारे माँ बाप ने हमारे दिमाग में इतना डाला था कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल। व्हाई नॉट? लाइफ इज दिस एंड दिस। भाई किसने कहा यूं रहती है? हुजूर सल्लल्लाहु की ही जिंदगी को उठा लें, उधर भी उन्होंने कितना ज्यादा फेस किया। मतलब लुक एट हिज लाइफ, आई लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। ही फेस्ड हिज डाउन, ही वेंट थ्रू डिप्रेशन। बिल्कुल। मतलब अब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु जैसी आपकी शख्सियत कुड गो थ्रू दैट, वो तो दुनिया की सबसे मतलब अजीम शान पर्सनालिटी थी, राइट? तो आप कैसे बोल सकते हैं अपने बच्चे को फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन? हमने वो कभी उनको सिखाया ही नहीं ना कि कभी कभार थोड़ी देर बैठ जाना भी इट्स फाइन। मतलब मैंने आई थिंक पर्सनली, मैं अपना भी कहूँ ना, मैंने नहीं सीखा था, तो कभी बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना, तो मुझे बहुत ज़रा प्रॉब्लम हुई उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि भाई मैं रुक क्यों गई, रुकना क्यों है मुझे? भाग रही है। हाँ, दुनिया भाग रही है, मैं तो भाग रही थी। तो मैंने हर जगह ना हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए, तो वहाँ आप ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उस तरह से फील किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वही थोड़ा ज़रा स्टेप डाउन करना शुरू किया, थोड़ी बैक सीट लेना शुरू। एक चीज़ है, हाँ, why you didn't know yourself first has a lot to do with imposter syndrome. Even till now मेरे पास ब्रीफ आती है, मैं सोचती हूँ यार मैं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन दो आई नो कि मैं थोड़ी सी एफर्ट डालूंगी आ जाएगा आइडिया। मैं किसी से बैठ के मैं अपने मियाँ से डिस्कस करती हूँ, अपनी अम्मी से कुछ ना कुछ इनसाइट क्रैक करनी होती है बेसिकली फॉर मी। सो आई नो दैट्स माई, मैं नस पकड़ लेती हूँ ऑडियंस की कि अच्छा ये बात करोगे तो ये रिएक्शन आएगा, राइट? सो योर इम्पोस्टर सिंड्रोम, what we have gone through, वो नहीं है उनके। अच्छा, I'll give you a very, मतलब एक बहुत मज़े का इंसिडेंट हुआ था। फ्रेंड ऑफ माइन who runs a very big PR firm in Karachi reached out to me कि हुमा तुम्हें बहुत क्रिएटर्स फॉलो करते, we're looking for some new fresh minds, so why don't you post कि हमारे पास है। मैंने पोस्ट लगा, मुझे धड़ाधड़ DMs आना शुरू, ये प्लेस इतनी टॉक्सिक है, ये ओनर इतनी टॉक्सिक, इसकी मैनेजर इतनी टॉक्सिक है, ये है वो है। I know both the girls, जो ओनर भी थी और उसकी मैनेजर थी। I called her the younger one up, I was like यार मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, तो क्या हो गया? कहती है वही बात तुम्हारी थी कि मुझे जेंजी की समझ ही नहीं आती हुमा, ये साले ऐसे चलते हैं, ये 6 बजे इनको ऑफ चाहिए और इनको कॉल करो तो कहते हैं दिस इज माई ऑफ टाइम एंड आई गेटिंग ओवर टाइम। क्या मतलब हमने रगड़ा नहीं खाया? सब उसने पूरी डिटेल लेट आउट की। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने कि देखो हमने रगड़ा खाया, यू से ऐसे, इसको नहीं पता होगा कि रगड़ा क्या होता है, ठीक है? हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने खाया, पर क्या वो सही था? नहीं। वो उसी से तो इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज भी निकलते। याद है वन ऑफ द बिगेस्ट MNCs जिनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 2 साल बाद आपका अप्रेजल होगा एंड बेस्ड ऑन योर एक्युलेट्स और व्हाटएवर यू डन फॉर द कंपनी यू विल गेट अ प्रमोशन। मैं उस कंपनी में 5 साल रही हूँ। मैं जिस सैलरी पे आई थी, जिस टाइटल पे आई थी, उसी पे 5 साल बाद गई हूँ। और ये वो टाइम है जब मैंने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। बिल्कुल। उनको क्लाइंट्स तक दिए अपने रिसोर्सेज के थ्रू। एंड व्हेन आई वुड गो टू द GM एंड आई बी लाइक यार मतलब अप्रेजल करना है, प्रमोशन है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारा MBA कमा रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू नो व्हेन द जेन ज़ी टॉक्स इट हिट्स मी कि मैं भी बोलती कि अच्छा ठीक है मैं भी नहीं आती हूँ फिर कल से ऑफिस, मैं एक सैलरी लूँगी क्योंकि आप तो प्रमोशन ही दे रहे, यू नॉट पेइंग मी, देयर इज नो मोटिवेशन फॉर मी टू डू एनीथिंग बेटर। एंड एट द एंड ऑफ दैट I was so demotivated. I was hardly giving out any work. I was getting anxiety attacks in the morning. I was crying and throwing up before going in the morning. It sounds like you love your job. But तो you are ये क्यों not हो रहा है? enjoying हाँ, this. बिल्कुल। So, अपना ट्रॉमा याद करो। हाँ, You know, workforce में मैंने उसको याद दिलाई। मैंने कि याद है अपना टाइम कि हाँ पता है मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में मैंने कि that was not okay ना। And since we had inherently accepted कि ये तो रगड़ा लगता है, तो ये सारे क्यों नहीं रगड़ा खा रहे? नहीं खा रहे। वो सास बहू वाली चीज हमें बाउंड्री भी नहीं समझ आती। बाय द वे विद पेरेंट्स, विद वर्क, विद एल्डर्स, एनीवन, आज जनरेशन वी डोंट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। क्योंकि हमें पहले बाउंड्री का मतलब ही नहीं ना पता था। बाउंड्री का मतलब पहले चीज आती है शायद दीवारें खड़ी कर दो, बस यहाँ से निकलना। बाउंड्रीज है, बाउंड्री का मतलब है बदतमीज। अब मुझे, मैं आई बीन टेकिंग थेरेपी फॉर ऑलमोस्ट
6-7 years, right? मजे की बात एग्जैक्ट वही टाइम शादी का I've been taking, उससे भी पहले थोड़ी सी थेरेपी ली थी, then I let go and then on and off होता रहता है. And for 7 years, every other therapist like, Huma, boundaries. I did not understand that. And I will tell you what my really, really close friend, Bhabhi, everyone explained to me what boundary means. Boundary का मतलब ये नहीं है मिनाहिल कि आप अपने बड़ों से बदतमीजी करें. बाउंड्री का मतलब ये है आप बहुत कामली और बहुत आराम से उनको बोल रहे हो मिनाहिल मुझसे आप ये सवाल मत पूछें, आई विल नॉट आंसर टू दैट. यू क्वेश्चन मी अगेन, आई बी लाइक मिनाहिल मैं ये सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं आपसे नहीं इस बारे में बात करूँगी. आस्क मी अगेन 3-4 दफा मैं बस कामली, हम होते हैं इमोशनल, तू पूछा तुमने, मैंने मना किया था, हाउ डेयर यू, लाइट बंद करो, शूट बंद करो. हमें बाउंड्रीज ये होती हैं जो मैं जेन जी से सीखती हूँ कि वो कर देते हैं. मैम आज आप सबमिशन लेने, हम वीकेंड पे काम नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं काम करोगे, हमारी ये सबमिशन है, फलाना है, दिमागा है, ये है, वो है. आई लास्ट का जेन मतलब डेमोक्रेसी भी चलती है मेरी क्लास में, तो पूछते हैं सबसे कि क्या सीन है. अच्छा तो फिर इस सैटरडे को ओके सबमिशन रखते हैं, फाइन, दैट्स ओके विथ मी. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देम कि दे आर लेइंग डाउन बाउंड्रीज. जो कि हमेशा हमने फील किया है कि जब दिल चाहता है हमें बड़ा बना दो, जब दिल चाहता है हमें छोटा बना दो. तो वो एक चीज़ आपने फिक्स नहीं ना की कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. तो उन्होंने तो अपना वो चीज़ रख दिए कि हम हैं इंडिविजुअल्स है ना. हम तो बच्चे में अम्मी को पता नहीं कहाँ हम लोग गए थे, तो एक आंटी कहते हैं इतने प्यारे बच्चे, बड़ी एक्टिव है, ये है वो है. लेकिन आंटी आपके ज़माने में हम लोग ना छीछड़े पड़े रहते थे 2-3 साल तक, पड़े हुए बाउंसर में, बस खिला दिया पिला दिया. ये दोस्त आंखें पट खुली होती हैं, फॉरन रिएक्शंस देने शुरू हो गए. दे हैव बिकम इंडिविजुअल्स, आवर किड्स ऑलरेडी. So imagine Gen Z का ये है कि they are very self-aware, and if they are laying down boundaries, you respect that. And if they're not doing their job, then this is how professional works. You're not doing your job. Thank you. There's the role. You can leave now. इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं. You हमारे टाइम में भी हमने देखे किस तरह के थे, काम करते नहीं थे, प्रमोशन पे प्रमोशन उठाए जाते थे. ऐसे भी था. अभी तक ऐसे लोग मैंने डायरेक्टर मार्केटिंग देखे हुए हैं who are zonked out on their job because they're doing hardcore drugs, but not only are they director marketing, they're also doing consultancy for 3 other jobs. So they're earning about 1 million rupees when they're drugged out. That's someone who was their ex telling us this. I turned to my husband, I was like, that's patriarchy. I'm sitting here without any drugs. My only drug is that I'm crazy and I take humor. एक ड्राइव है, हाँ बिल्कुल. But उसको मिलेगा क्योंकि वो लौंडा है. वो ड्रग्स में हार्डकोर ड्रग्स. I know this for a fact. That guy is running a company. सो क्रिएटिव फील्ड में ये एज आपका तो क्रिएटिव और कॉर्पोरेट दोनों साथ साथ ही था ना, मतलब वो वाली चीज़ थी BBDO में, राइट? तो उसमें चैलेंजेस इस तरह के जो आए कि एज अ वुमन आपने ये वाली चीज़ जो फील की, क्या अभी भी ऐसे ही चल रहा है? ओके, सो इन BBDO मैं वही बता रही हूँ. जेन जी आपके पास है ना, if you give them a non-toxic environment, they will put their heart and soul in. I've seen that. ठीक है, you talk to them, you मतलब मेरे कुछ students थे who couldn't work on those things, but since I built a community of students, at least I try to कि वो उसी लय में ना उन्होंने कुछ ना कुछ काम कर दिया. BBDO में बहुत नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट था. हमने वीकेंड्स लगाए, हमने ओवर टाइम किया. मैं प्रेगनेंसी में पूरा वक्त काम करती, कभी हमें ये वो प्रेशर ही नहीं फील हुआ कि यार मैं नौकरी पे जा रही हूँ. माई हस्बैंड यूज्ड टू गेट जेलस ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज, हमारे सारे जितने भी उस टाइम पे थे, वी हैड सच अ कमाड्री. इवन आवर सीनियर्स वर, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि किसी को प्रमोशंस और अप्रेजर्स नहीं बन रहे थे, बट वी कोई किसी जेन्युइनली एंजॉयड योर टाइम. कोई किसी को कोई हड़हराम नहीं था. सीधी बात है, सब अपने कामों में लगे थे. कोई कभी फिंगर भी पॉइंट करता था ना. हमारे उस टाइम में फैसल दुरानी वाज द GM, वो पॉलिटिक्स को कल्टिवेट ही नहीं होने देते थे. वो निप इन द बट करते. माय सीनियर हैड अ प्रॉब्लम विथ मी. He would make both of us sit down. If I was wrong, I would apologize to him in front of him, to my senior. If she was wrong, he would tell me to leave, and he would make her admit कि तुम गलत हो. तो embarrass भी नहीं किया मेरे embarrass भी नहीं किया सामने. ईगो को भी थोड़ा ज़रा मैनेज किया ना. He was one of the, मतलब आप किसी से भी पूछ लो उस आदमी के बारे में, हमेशा फूल जड़ते हैं हर किसी के. Not that he paid anyone. He was one of the most amazing like people who could manage. और हम लोग ना सिर्फ पेप्सी का पोर्टफोलियो,
लेस का पूरा पोर्टफोलियो, नॉन पेप्सी क्लाइंट्स का, और फिर उसके बाद अवार्ड विनिंग काम अलग करते थे। हमारा ईयरली AOPs आते थे विच वर पूरे साल के कैंपेन्स देने होते थे। तो हमारे 6-7 वीकेंड्स लग रहे होते थे, बट कसम से मिला कभी हमें नहीं फील हुआ मुझे पर्सनली कि यार काम पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, होता है, कभी-कभी होता है। होते थे, बट इट वाज ऑलवेज लाइक वी वर ऑल वर्किंग टुगेदर, सो दैट नॉन टॉक्सिक। मैं आज भी बात करूँ, वो कहते थे यार तुम लोग कुत्ते थे, तुम लोग एक कैंपेन आफ्टर दी अदर, कोई ऐसा बम्बार्ड तुम कर रहे होते थे कि हम लोग की फटी होती है कैसे, क्योंकि ग्राउंड दे दिया ना प्ले करने को। और दूसरा ये कि जो सीनियर, हाँ, और जो ये माय हस्बैंड सेज दैट अ लॉट कि माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए नहीं। और उस वजह से काफ़ी लोग जो है ना उस तरह से इरिटेटेड होते हैं कि मतलब हर चीज़ क्यों पोक किए चले जा रहे हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु इज हेडिंग द डिपार्टमेंट, कल्चर। यस, सो योर मैनेजमेंट का जो कल्चर होगा वो हर जगह नजर आएगा। आपकी टॉप मैनेजमेंट साइकोटिक और टॉक्सिक है, वो हर जगह नजर आएगा आपको। सो इफ यू आस्क, बट आई एम श्योर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक होगा ना, बट उन्होंने पास ऑन नहीं किया ना। क्यों गया, इसलिए तो he took a stand for us. That's the story that I've heard allegedly, that you know like he was like hey, nobody's getting appraisals, लोग यहाँ 5-5 साल से काम कर रहे हैं, आपको अवार्ड जिता रहे हैं जिसकी वजह से आप एजेंसी ऑफ द ईयर और ये सब कुछ बन रहे हैं, तो इनको आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? Now there's a technicality behind this as well, now that I've been to Cannes and know about this, is कि बाहर जितनी भी MNCs हो ना, they are all gauge their financials and cost in dollars. अच्छा, आप पाकिस्तान की जितनी भी आपने कमाया हो 30-30 लाख का रिटेनर हो, कुछ वो डॉलर्स में डालो तो कुछ भी नहीं है। वो बोलेंगे ये ऑफिस ये तो कुछ हमें अर्न करके ही नहीं दे रहा, बाकी ये नहीं देख रहे कि अवार्ड्स हैं या कुछ है। बिल्कुल। So when somebody did take a stand, that fearless moment was let go, and that's when the downfall happened. मेरे सारे लोग वहाँ से फिर मेरे ख्याल से निकलना शुरू हो गए, एंजाइटी हो गई। वो आया जो दूसरा बुड्ढा, वो एक डायनासोर भाई साहब थे, बिल्कुल वो फायर हुए थे इसी नेटवर्क से, नेटवर्क ने उनको बुला लिया वापस। और वो अजीब एक ड्रैकुला नुमा एक आदमी घूम रहा होता था, वो मेरे से बोलता था मैं तुम्हारी बॉस को फायर कर रहा हूँ, तुम्हें वो जगह दे रहा हूँ, और मेरी बॉस को बोलता था कि मैं तुम्हारे बॉस को फायर कर रहा हूँ, तुम्हें अजीब। We were all working together, a good mix. But he had pressure because he had to give them numbers. उसको नहीं, वो क्या कर रहा था, अनऑफिशियली लोगों को फायर कर रहा था। मुझे अनऑफिशियली फायर किया हुआ था। मेरे अकाउंट में BD इस कंपनी के चेक्स आ रहे होते थे कि 6 लाख का चेक। मैंने ये कि अच्छा इसमें से कैश निकाल के हमें दे दे। मैंने कि तो टैक्स तुम्हारा बाप पड़ेगा इसका 6 लाख का, मैं क्यों दूँ, मैं तो ट्रांसफर करूँगी, पेपर ट्रेल होनी चाहिए। सो he started doing that. That's when I started getting anxiety. And then after I resigned, and I remember because everyone was so like digital agency भी वहीं पे थी, हमारी बच्चे थे साथ मतलब। And one day I came so happy, and वो next generation ही थी, वो like I remember I walked into the office the day I decided to resign, and the juniors were there and like हुमा आज आप बहुत literally वो बैठ के मुझे बोलते थे आप you're not yourself. Like I would joke with the juniors, the seniors, the tea boy पतला से इन लोगों के साथ बहुत मजे करती थी। मैं प्रेगनेंसी में तो मेरा ये हाल होता, like I'm telling you, when you have a good environment, मैं प्रेगनेंसी में पाँव ऊपर कर फूल हो जाता था, ब्लड ऊपर करके बैठी, क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा था, मैं क्या कर कुछ नहीं, 3D प्रिंटर मशीन बन के बैठे हुए, and he would be like अच्छा like we had that thing, and he wouldn't go around telling GM कि भाई वो तो नहीं कर रही, वो कह रही मैं प्रेगनेंसी में बिजी हूँ, मैं बच्चा बनाने में बिजी हूँ। We had that. So when I came very happy, they're like, Uma, why are you happy? I'm gonna resign today, and they're like उन कुछ ही parents थे, and I was 2 or 3rd person who had a kid, and you know like the consistency of having a paycheck and everything. So they're like, Huma, you got a job? I was like, no, but I'm done with this shit. This is not worth my mental health. And I'm not going to take credit for it, but after I quit, there were 30 resignations that followed eventually, because everyone somewhere or the other was facing the same problem. Yeah, fuck this is not worth it. So when you ask me, has the things changed? Most of the places that I've gone for consultancy or I've tried to do a job, the toxic culture is pretty much there. Especially in Lahore, मैंने ये देखा, there's a lot of state culture, right? It is. State बैठा हुआ है वहाँ पे। और हर फील्ड में ऐसे है, every फील्ड में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। This is yes. और मुझे होता है, I think कराची is the market. वहाँ अब मैं बता 2-3 जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। सेठ कल्चर में सेठ ने अपने इर्द गिर्द 4 येस मैन्स रखे हुए हैं, ठीक है, सर क्या सर ठीक है सर, यस सर, ये हो जाएगा, ये प्लांट उल्टा लग जाएगा, सब हो जाएगा, फिर कोई मसले की बात नहीं। वो आगे जाके लैंडस्केपिंग वाले की एस ले रहा है, ठीक है।
You have so many yes men. When a person, whether be it a girl or a boy, who comes in and says, सर ये प्लांट उल्टा नहीं रख सकते, इनफैक्ट आप कर क्या रहे हैं, आपका लैंडस्केपिंग पूरा रियल एस्टेट मॉडल खराब हो जाएगा, आप उल्टे पौधे लगा क्यों रहे, नीचे रखें, रूट्स खराब होंगी, सब कुछ होंगी। उसने सेठ को समझा दिया कि बात आइडिया का गलत है। सेठ को थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई कि चलो कोई मुझे चैलेंज भी कर रहा है, अगर वो इंसान का बच्चा है जो समझ जाए। नहीं तो बहुत इगोइस्टिक भी तो है ना, वो तो अपने उस पे ले लेते हैं। अगर वो इंसान है और उसका दिमाग चल रहा है, आई हैव हायर्ड यू, me or this kid over here for their expertise. बिल्कुल. And they're bringing it to the table कि don't do a TVC, do a 15-seconder tactical DVC because you're an app. You don't need to be on television. Everyone's moved towards digital. मैंने ये बात कह दी, वो समझदार होगा, समझ जाएगा मेरे पैसे बचा रही है, मुझे रिजल्ट्स देगी। बट आपके इर्द गिर्द जो 4 येस मैन बैठे ना, वो कहीं उसने बोलते कि यार बट टीवी पे तो हाँ सर, मतलब दुनिया देखेगी ना आपका ऐड ना, टीवी पे कौन नहीं बैठता सर, आप भी रात में जाके बैठते हैं, आप टारगेट मार के है नहीं, वो लड़कियों का ऐड है। बट यू हैव दीज येस मैन हु गेट इनसिक्योर कि यार ये आई है या ये आया है, ये कोई बात ऐसी कर रहा है, और फिर इवेंचुअली सेठ वुड बी लाइक तू क्या कर रहा था इतने सालों। एग्जैक्टली, वो अपनी जॉब बचाने के लिए they make the good person. I not just seen this in women, I've experienced this. I've seen very senior people get fired from their jobs because they were not a yes man to a state. This is Lahore. Okay, now you come to Karachi. Karachi एक टाइम था मैं और अरसलान मूव करने का सोच रहे थे, बिकॉज माई एंटायर फैमिली इज इन कराची। कराची इज अ डिफरेंट पेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट सो मेनी क्लाइंट्स इन लाहौर, बिकॉज वो मुझसे बोलते थे ये कैंपेन कब तक हो जाएंगे? नहीं, हफ्ते में। कितने हफ्ते में? 1 हफ्ते में। बल्कि 4 दिन में भी कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं कराची जाके शूट काम करके मुकाओ ना, बस आगे चलो। दे नॉट यूज टू इट, लाइक कैसे कर लेंगे आप 1 हफ्ते में? फिर मुझे वो 411 की पतली सी लड़की को देखते थे, पतली तो आई एम जस्ट अपने आप को ऐड कर रही हूँ, बट यू नो इतनी 4 फुटिया एक लड़की को देखते थे, तो देन आई वुड ब्रिंग माई एट दैट टाइम पार्टनर इनके, ये है ना, इससे करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। So that's why I got so many clients in Lahore, because they were not used to, वो कहते थे 2 हफ्ते में होगा, ये होगा। So I used to work at fast pace because it's a Karachi thing, it's a hustle thing. बिल्कुल। In Karachi now what has happened, कि एक time था when my parents were there, when we were there as youngsters, so my family is very business and you know bankers and all of that, engineers and everything. उस टाइम पे ये था कि अगर आपने किसी के साथ बिजनेस कम्युनिटी में प्रॉमिस किया है कि पैसे देंगे या whatever, you haven't done it, the business community would come together and blacklist you. And literally ज़बानों के तहत करोड़ों में बात हो जाती थी। Obviously paper would follow, but you would know कि अच्छा ये वो फैमिली के, ये उस बरादरी के मेमन है या वो है, and that's how the business community in Karachi flourished. Now what has happened, there's a lot of con men and you know like spammers मैं कहूँगी, अब कुछ वो इस तरीके के लोग आ गए हैं कराची में, who act like they're from the business community but they're not, and they have scammed people out of their own businesses to the point like अभी recently अरसलान के साथ was offered a partnership and my family was more than excited. कराची का shift हो जाएगा। I started talking to Indus, I got offered a course and I started looking at other options कि मैं यहाँ consultancy कर सकूँ। I started activating my network. Arsal's been working there for 3-4 months. I mean, 2 months, I think. And contract बनने में थोड़ा सा time लगता है. You know, you negotiate the business terms and deals and everything. This is the first time Arsal's getting into a partnership. He's also really happy. He's working meanwhile. He's filling out tenders and everything. And then, you know, like he's like, अच्छा contract तो हो जाएगा. अभी मुझे running income चाहिए because I want to bring my family. He's looking at apartments and everything to, you know, put us back in because he's never been away from me. I've never been away from him. We're looking at this, मैं schools में पता करा रही हूँ, ये है वो. And the partnership people go and say कि oh अभी तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते. Because like the deal contracts I don't say अभी तक तो हुआ नहीं है. या तो आप इसको priority बनाए and I stop working for you. So we do the contract and then you know we figure something out. No, that's why I'm connecting your wife to so many other people कि वो running income देगी. And he's like, that's not your problem. I've been working for 2 months here. You pay me my due share. अच्छा चलो वो तब आ रही थी मुहर्रम की छुट्टियाँ. Okay. So he was going to come here. So he's like, okay, then pay me my 2 months and then I'll sit and think what I have to do and I'll get back to you. This person gives her a meager, like,
you know what our maids को हम देते हैं वो उसने उठा के दिया. No shade on the maid, but for working for an architect to be offered a partnership and then being paid that little an amount कि वो अपने आप को नहीं sustain कर सकता था. So he just family gave को it कैसे back to her, the owner. He's like, I'm sorry, but he literally sold off his computers, every जो भी हमारी यहाँ पे थी छोटी मोटी, ताकि वो वहाँ पे shift हो जाए. My dad's looking at other. He was looking forward to that, but इस तरह के लोग बहुत सारी, वही generalize नहीं. But ये पता है कराची में 2-3 लोगों से, even my own family and everyone has started saying कि कराची में these things have started happening. People don't keep up to their word. They are हालांकि कराची was the only place जहाँ ये होता था. अभी नहीं, अब हसल कल्चर, वही तो बात है ना, हसल कल्चर में आप दूसरे के एडवांटेज ले लेते हो अंडर द फैक्ट कि भाई मैं तो हसलर हूँ. आपने किसी के I myself was operated as a employee in my own company. You said co-founder. Now there's no co-founder. It's my company now. Ah, nice. Yeah, because I realized after some time, okay, yeah, someone's making way more money than me, and I'm not given that respect by being shared the same finances. So what the hell is going on? And it took me some time. My parents knew something was off. My brother knew. My husband knew. But since they let me, किसी ने आज मुझे ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें कहा था, I told you so, या कुछ, no one said anything. So अब ये जो आप कह रहे हो ना कि कल्चर क्या है, like I said, your economy is shrinking. Companies are not making money. जब उनके पास पैसे नहीं तो वो नीचे कैसे आप software houses को उठा लें, which is becoming the booming industry right now. Your husband's gotten into this, right? The majority of software houses are running on scams, and you know that, right? Like leading software houses. Someone offered me somewhere कि भाई आप आके हमारी marketing strategy lead करें and everything. Now I do my research, and when I research, आप पता नहीं किसी गोरे का social security number लेके यहाँ पे हसीब को ब्रांड बना के बैठाया हुआ है. That's a scam. जितनी मैंने software houses के साथ थोड़ी बहुत consultancy की है, and if anyone has reached out to me and I've done my research, I've started finding out कि you're right कि वो गोरे यार, but आपका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनको इस तरीके से कल आपका नेट बंद हो जाता है. तो मुझे आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव डन द रिसर्च, राइट, कि आप अपना ब्राउन कल्चर नहीं दिखा सकते अपने, यू नो, यू वांट टू अट्रैक्ट द टेक पीपल बाय सेइंग कि ओह माय गॉड लुक एट दिस, हमारा ऑरेंज डे होता है, हमारा ये होता है, हमारा वो सारे, यू नो, द पर्क्स एंड एवरीथिंग, हमारे हम ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं. You want to attract them as well, but you don't want to show your potential clients that you have only brown people working for you. Why? Because आपको कोई 10,000 या $100,000 या $1 million का प्रोजेक्ट नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में आज बटन बंद कर दिया तो इंटरनेट खत्म हो गया है, या आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो ब्लैकआउट चल जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट तो फंस. आई केयर इट, दैट्स द इशू. बट गोरे कल नहीं पैदा हुए, वो भी तो कहीं ना, मैं देख रही हूँ सॉफ्टवेयर, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग विच इज़ नॉट अ लॉट, आई एम एन एनालिटिकल पर्सन, आई पिक अप ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बबल बर्स्ट होगा, बहुत जल्द होगा, बिकॉज यू हैव मेड ह्यूज बिल्डिंग्स. इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस ने बिल्डिंग्स कर लिए क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्होंने 2 नंबरी करके प्रोजेक्ट्स उठा लिए. 2 नंबरी में इसलिए कहूँगी क्योंकि यू आर नॉट पुटिंग इट फॉरवर्ड. यू, आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस. मुझे भी उन्होंने टाइम पे पता नहीं लॉरा बना के बैठा दिया, तो आई वाज लॉरा विद एन एक्सेंट. आई हैव नो, वो कभी सदर्न हो जाता था, कभी यूके हो जाता था, और वो गोरा सुन रहा होता था. बट द पॉइंट वाज कि I know what you're trying to do, but if you take ownership, वही बात है ना कि ownership ले लो कि भाई हम पाकिस्तान में we're trying to build a community of these tech people and probably have an office कि आप यहाँ से ही brown लोगों को, जो youngsters ये सारे जितने भी बैठे हुए, उनको उठा के आप बाहर दुबई भेज दो, कि उनकी quality of life भी बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, वहाँ से आप अपने ही ब्राउन को एक्सप्लॉइट करो. Now that you've told me कि it's your company only, so how's the company environment, whatever you faced at your corporate achieved, how is it different to them? Okay, so I'll be very clear about this, and I started, like, for the longest time आप होते हैं ना denial में रह रहे होते हैं. So for now my company has taken a back seat basically. Reason being, and I'm going to say it honestly, everyone comes on podcast, talks about how successful they are. And that's not what I want to talk about. If you've called me
beta, dirty laundry is about to be aired, right? So after I got sort of like, I didn't make the amount of money I should have made, I took a back seat. The briefs that were coming were the same old mobile mein Gen Z having the time of their life and everything. I'm fucking teaching Gen Z. I know the skeletons in their closets. I've been confided with so much information, the insights I have, I swear. And that was one of the strategic moves why I shifted towards teaching, because I was like, we're clearly missing the mark with Gen Z. ये बच्चा जो बैठ के खुश हो रहा है ना कि मुझे Gen Z का इतना कैसे पता है, there is a millionaire who's taking our side, is because I have about 1.5 years sat with these Gen Zs, talked about the relationship, talked about their parental issues, talked about their mental health issues. And it's not like me, हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है. They come to me. I have that superpower that people come in and confide their very things. And gives me insights, which is good for my marketing, right? Yeah. So I went to teach at NCA was I want to understand what they are thinking, what is their difference with us. हम तो देखते थे कोला शॉट का और हम इन एस्पायर हो जाते थे. तो you know your brands हमें aspirational ads है. Aspirational. It's not gonna work anymore with Gen Z. Yeah. Gen Z का अब ये है कि they have mental health issues. You and I, when we were growing up, we were हमारे पास क्या होता था कि उनका शमाइला का बेटे ने इतना कर लिया, उसने ये कर लिया, उनकी शादी हो गई, जान पहचान का था. Now it is सोशल मीडिया की वजह से वो बढ़ चुका है सब चीजें. If you and I were Gen Z and we could see यार माहम कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, यार लीना के इतनी एंगेजमेंट आ रही है, and we were all competing for the same audience. तुम्हारे पर कितना प्रेशर होगा यार. दोस्त आपके बैठ के पैसे कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, एंड इट्स नॉट लाइक आपकी अम्मी बता रही तो आप कहते हैं अम्मी को क्या पता. You know these things. So can you imagine the pressure they are in? Because right now at their age they can become a huge influencer and YouTuber and all of that and make lots of money. But if they're not able to, can you imagine the pressure they are in? So they have mental health issues going on and everything. I went to understand what's going on with Gen Z. How can we pick up their nerve? उनकी वो नस कैसे पकड़ें कि वो वाकई they feel that relatability with the brand. I'm still getting briefs about एफ्रो में बच्चे को दिखाओ यूं करते हुए, ग्राफिटी करता हुआ बच्चा दिखाओ, और ये मतलब टेरेस पे एक पार्टी हो रही बारबेक्यू. टिपिकल से हैं ये मैंने नहीं देखे. मैं घर में बैठी हूँ Gen Z के. तुम बताओ भाई तुमने कब टेरेस पे बारबेक्यू पे पार्टी की हुई है? और you don't do this. Why are you fooling? This aspirational value worked on us. It doesn't work anymore. The more you keep it real, the more it's going to work. So I would push for real concepts. I have numbers. I have 15 years of experience. I'm giving you a concept with proper numbers that's going to make you viral, that will make Gen Z talk about it. नहीं, ये नहीं चाहिए हमें. And I used to show ads to my classes. एक बहुत बड़ी ब्रांड का about 8-9 करोड़ का उन्होंने ad बनाया, 1.5 मिनट का वो एंथम था, हर आर्टिस्ट उसमें डाला हुआ था. वो मैंने उनको दिखाया और बीच में रोक दिया. उन्होंने कहा मैम ये आप क्या दिखा रही है हमें? मैंने कहा तुम लोगों ने देखा नहीं है. इमेजिन योर डिजिटल मार्केटिंग जिसने डॉलर्स एंड डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगाए हुए कि ये बच्चा देख सके वो एड. इसने वो एड नहीं देखा हुआ that you have made as an anthem of Gen Z. The Gen Z 40 students of mine, not one of them has seen this ad on their newsfeed. And even if they did, they just scrolled it up. So clearly, because वो उसको connect ही नहीं ना कर पा रहे. आपने 9 करोड़ तो आग लगा दी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए. Why? मुझे मैसेज भी आता है उस ब्रांड मैनेजर का कि यार oh wow you showing it, send it to me. मैंने listen, do a focus group, pay my students and find out what's wrong with it. It did work out. Didn't give a shit. वो उस पे काम भी नहीं करना चाहते. नहीं, वो अजीब KPI के नंबर कहीं से बता देते हैं कि सक्सेस हो. So I started getting briefs like that, which was killing me. मुझे नहीं बनाने वो typical 10 एजेंसीज हैं यार, मैं आपको नंबर देती हूँ, आप बना लो वहाँ से जाके. If you coming to me, you need to be sure what I bring to the table, which is realism, which is the next step. So मुझे जब ये briefs आने शुरू हुई, I was like, I can't do this. एक तो मुझे पैसे उतने नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है. उसके बाद आप मुझसे कह रहे हैं वही टिपिकल काम करो, तो आप चले जाओ प्रोडक्शन हाउस के पास, या वो डायरेक्ट बना देंगे, वो आप एग्जैक्टली उनको पता हमें क्या चाहिए वो बना के दे देगा आपको.
अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, I'm going to bring some form of tonality to your brand, make you stand out and make relevance of yours in the market, so you hit the nail on the point. Abhi, and that's a bit experimental for brands to do. But like I said, the economy is going so down. सबसे पहले आपके marketing budgets slash होते हैं. बिल्कुल. And then brand managers, marketing managers की पैक हुई होती है, because if they experiment or if they test something out and it doesn't do well, तो आपकी नौकरी ऑन द लाइन है अगेन, बिकॉज द कंपनी इज नॉट मेकिंग मनी. सो आपने हमें रिजल्ट नहीं दिए, आप निकल जाए, कट लें, सही है. इट्स गॉटन रियली टॉक्सिक. सो दैट्स वाई वो एक टाइम होता है ना इकोनॉमी बूम करने में, आपका क्रिएटिव और आर्ट ही बूम करता है. ऐसे वाई? बिकॉज अगर एक आर्टिस्ट डर रहा है कि यार मैंने ये पेंटिंग बना दी, कोई खरीदेगा नहीं, जब आपकी इकोनॉमी बूम करो, बना के लगा देगा, और पीपल विल हैव इनफ परचेजिंग पावर टू बाय दैट एज वेल, कि यार आई लाइक दिस art form, it's different and I want to invest in it. So it's not just creative and artists that are suffering right everyone. now. Huma, you've also shown it on your public platform as well कि जिस तरह से आपने mental health को आप deal करते हैं. And then second thing is कि कभी कभार मैंने ये भी आपकी post में देखा कि you have to tell your clients about one of the projects and you're struggling to even talk to them. मतलब वो वाली चीज़ I think वो clients पे आपको कहीं ना कहीं follow करके देख रहे होते होंगे. So उस चीज़ को कैसे manage किया? क्योंकि कभी कभार if I personally have to say ना, मेरा नहीं कभी कभार दिल चाहता कि मैं फ़ोन भी उठाऊँ, क्योंकि I'm struggling with something कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, और then I tell them कि I was busy with my meeting or something of that sort. But मुझे होता है मुझे वो झूठ भी नहीं बोलना. मुझे होता है कि मैं सीधी क्यों नहीं बोल सकती कि हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा भाई फ़ोन उठाने को, because I'm struggling with something. But you don't want to show that side of you to your clients, because वो आपको फिर उस चीज़ पे जज करेंगे, you know. करते हैं. So if you say, I tell my client कि oh I was having an anxiety attack इसलिए I couldn't pick up, that's not true. I also I don't tell them. देखो client सेठ है ना आगे बैठा हुआ, वो तो पैसे दे रहा है आपको अपने काम करने के लिए. बिल्कुल. और होता है कि sometimes you're just going through a very bad time, so you don't want to pick up the phone or message them at that time and everything, and you can always get back to me, I'm sorry I was busy, and you know this is the answer and everything. Be it business, be it your life, be it relationships, they're going to be up and down. बिल्कुल. Time has changed. We need to tell girls, boys, everyone कि भाई जिंदगी ये नहीं रहती है खुदा के वास्ते. And when it goes down, don't beat yourself up. Learn from that downer. So if my company is not functioning right now, I'm just sitting down and observing what's going on. And you know what I've observed recently? People like you, me, him have started thinking of ideas to start a business. Online हो गया, चप्पलों का शुरू कर दिया, earrings का शुरू कर दिया, कुछ भी कर दिया. So and अभी जो हम बात कर रहे थे about the podcast as well. Everyone is now thinking of other ways to hustle. So जहाँ तक मैंने predict किया कि एक software का collapse होगा, मैं देख रही हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस का बूम ऑलरेडी चल चुका है. पहले कहाँ छोटे छोटे बिजनेसेस आपके इंस्टाग्राम पे पॉपअप होते थे, everyone else is doing, and उनको अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी मिलना शुरू हो गए, जैसे डाची है, हयाली, और ये सारी ये भी अच्छे कौन सा Shopify is there, and all these online platforms that have started, and Instagram and now TikTok business is there. So I'm seeing so many, मतलब मैंने अपने से juniors जो बेचारे couldn't afford it, 4 people have come together कि Homa, we want to launch this, how do we go about it? So and अमीर वाले भी मेरे पास आ रहे हैं कि भाई मेरी बीवी के लिए मुझे कुछ करना है, तो आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ. Now I'm seeing that coming in, which means small businesses will be catering to you know youngsters and Gen Z के बाद सोशल मीडिया आप डिज़ाइन कर दो, आप कुछ कर दो. और सर हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा भी है, मतलब आप छोटे छोटे बिजनेसेस भी अब बूम पे जाना शुरू कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो बहुत छोटे लेवल पे शुरू हुए थे, एंड देन लाइक सो वो वाली चीज़ तो हमने अपने सामने देखी है. सो टॉकिंग अबाउट mental health, हाँ. So I don't tell my clients unless I not build very good rapport with my clients to the point कि वहाँ कहीं वो फंसते हैं, they can always reach out to me and I can help them because I've helped build their baby up. Right? But when I talk about my mental health issues on my social media, there's no harm in it. Because how do people take it? Nobody's ever questioned me about it. Like, you know, they have it. In fact, I felt a lot of empathy from female clients as well. Oh, I'm so sorry you were going through it. Ya kuch hai. In fact, I had a client, one of my very first clients,
who reached out to me at one of the worst time of my life, right? It was one of the most darkest period of my life. I was on antidepressants and I cut it cold turkey, which you're not supposed to do. But I did that and I was going through a withdrawal and extreme paranoia, lack of sleep, retching, not eating, like भूख भी इतनी बड़ी नेमत है मुझे realize नहीं हुआ. 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था. I didn't feel like eating. I was still retching, right? Yeah. And उस time पे मुझे इसने client ने reach out किया and I was like, listen, I'm not mentally in a place to manage this. And they begged me. They're like, please, please. And then I spoke to my therapist and she's like, Homa, since you've worked all your life, take this on. कुछ नहीं होगा. क्लाइंट को बोल दो अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ माजरत के साथ मुझे कर दिया. एंड आई ट्राइड इट फॉर 2 months. इट डिडंट वर्क आउट एंड आई बैक्ड आउट ऑफ इट. वो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हुमा तुमने बोला था. हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई विल नॉट गो एंड टेल अ सेट कि भाई मुझे तो मेंटल डिप्रेशन हुआ. नहीं, यू आप अपने पाँव पे मारे हो. जितना मैं बोलते हुए फेयरलेस और ओपन होना जरूरी है, बट आप दिमाग भी तो यूज कर लेना. बिल्कुल. सो व्हेन आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड समबडी इज वाचिंग दैट्स अ वेरी पर्सनल साइड ऑफ मी. आपका काम नहीं इफेक्ट होगा और नहीं हुआ है. पीपल डोंट नो कि मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद मेरा कितना बड़ा पैनिक अटैक आया. काम आपका हो गया है, किया है मैंने प्रेगनेंसियों में इतने बड़े बड़े कैंपेन्स कर लिए, पोस्ट पार्टम मैंने इतने बड़े कैंपेन्स कर लिए, अपने डाउनर टाइम में मैंने वैक्सिंग लेडी ट्यूटोरियल निकाल दिया. तो आई कैन बीट दैट. सो व्हेन यू से ना डाउनर्स आते हैं प्रोफेशनली पर्सनली, उस डाउनर से मैंने क्या सीखा, आई गेट थ्रू इट एंड आई कम बैक स्ट्रॉन्गर. Because you've always had, no? But it's not just me. I'm telling you or anyone watching this podcast right now, whatever downer you're going through, don't think this is the end of it. Just as Smita Sen ne kiya tha, just go through it. You have to go through it. And once you're out of it, turn back and see what you have learned and apply that to your life. Allah Ta'ala जुल्म नहीं देता है. मतलब you don't, he doesn't टेस्ट उतना ही करते जितना आप सह सकते हैं ना. मैं किसी का पढ़ रही थी कि आप अल्लाह ताला से पेशेंस मांगो तो क्या आपको पेशेंस इस तरह पैकेट में मिलेगा? अल्लाह ताला puts you in a position जहाँ से learn how to be patient. I'm a very impatient person. So my life was all about patience. सीखो बेटा. And I've learned that. I think I have. Arslan would beg to differ. Life is like you're learning at every step. अगर आप सीखना चाहें तो मतलब आपका वही बात है ना कि हमें डाउनर टाइम्स दिए ही नहीं है. हमें बोला ही नहीं है कि आप फेल कर सकते हैं. अगर आप फेल करके चुप होके बैठे हो तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं. नहीं बेटा जाओ करो काम. नहीं हो रहा अभी. Give me some time. It's okay to just calm down and relax and just get your energy back so you can come back stronger. बिल्कुल. वो नहीं सिखाया. So हुमा जैसे मतलब there's so many achievements that you have, mashallah, and failures as well. Once you like talked about कि लोग आके सिर्फ ये बताते हैं कि ये मतलब मैंने इस तरह से उस प्रॉब्लम में से निकली और मैं निकल आई और फिर मैं बस यहाँ पहुँच गई. अब उसके बाद क्या? What you've done, हर जगह हाथ पाँव. I'm a hustler by nature. And I cannot. अभी मैंने थोड़ा सा back end पे इसलिए की हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा just sit and reposition myself. What am I planning to do? What my consistency is that I'm teaching at BNU. I'm picking up more courses. I'm trying to get into the teaching bit because मुझे मज़ा आता है इनको पढ़ा के और इनसे सीख के. Meanwhile, I have ideas that I reach out to clients for. I have ideas that I reach international clients out for. Okay, ये award winning है, मुझे पता है. Are you interested? So I keep. ये नहीं है कि घर में बस चुपचाप बैठे हुए. There's another thing that I live by, that consistency is key. और हरकत पे बरकत है. So bringing our podcast to the end, I would want you to send a message out to your students and all the other women that are watching you who want to be part of the creative field that you're in, and I'm sure they have learned a lot from this podcast because हमने एक typical उस चीज़ पे नहीं कोई भी बात की, हमने बहुत vast उस पे discussions किए and I really enjoyed it. So what message would you want to give to them? Not just creative, I think to anyone, not women in particular as well. I know times are tough. ठीक है, times are extremely tough. So people putting up these glossy images of people, they're buying Eid की shopping, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Don't get impressed by that. We are all struggling. We're all in this together. जिसने अभी आपके सामने तस्वीरें लगाई कि मेरी images की haul थी या whatever है, वो शायद उसने अपनी बहन से borrow करके लगाई हो. I'm not trying to diss anyone down. I'm just saying don't keep like super
ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के मैंने यही ब्रांड्स पहनी है तो मैं ये हूँगी और मुझे प्यारा दिखना है एंड एवरीथिंग. We're all suffering through this. Just keep swimming, and somewhere or the other you will find your path. And even if it's अभी सही नहीं चल रहा है, उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखो. अल्लाह ताला ने किसी वजह से वो हार्ड टाइम्स आपको दिए, उसमें से सीखना चाहिए. And then apply it to your life, because that's what life is. It's not going to be hee hee ha ha all the time. There will be ups and downs. Embrace the downs as you embrace the ups. Know that up will not last long, down will not last. Just keep swimming. Yeah. Just keep swimming and you'll get through this. In short. In short.